Assalamu alaikum and welcome to my channel. Today I'm going to show you how to find different Chinese university, and then I will also show you how to contact different professor in this university. So before starting our video, please don't forget to subscribe and like my channel. So now let's start. First we'll find some universities in China. Find some. Okay. Okay, here is the different websites of list of universities in China. For example, you can search through Wikipedia, you can search through university rankings. Like this one shows that the A to Z list of Chinese universities and colleges. And this one shows the top universities in China. So you can find university whatever you want. Like you can simply search through A to Z list, or if you are interested in top Chinese university, so you can click on this link. So yeah, this is the university ranking, and the universities are categorized according to their ranking. And here you can see that Tsinghua University located in the Beijing is at number one, Shanghai Jiatong is at number two, Peking is at number three, Fudan is at number four. So you can find this list easily. And this one shows the alphabetical order of Chinese universities. So these all are the universities, but make sure that which university is eligible for Chinese government scholarship, or if you are applying for Chinese government scholarship, because there are certain universities that are not eligible for Chinese scholarship council. So please make sure that which university you are applying, this university is eligible in that list. Okay, and now find some of the professor in any of these universities. So I will take Tsinghua University, and let's go and find some professor in Tsinghua University. Okay, this is the website of Tsinghua University. So basically इसमें ये होता है कि normally जितने भी websites है Chinese University के, तो वो Chinese में होते हैं. Let's change this to English. Okay. So here is the schools and department. So इसका तरीका ये है, first of all go to school and department and find the faculty over there. वहाँ पे भी आपको फैकल्टी मेंबर्स मिल सकते हैं, और दूसरी बात ये कि बहुत से वेबसाइट में डायरेक्ट भी फैकल्टी एंड स्टाफ का लिंक दिया होता है, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है. सो वी विल सर्च थ्रू स्कूल एंड डिपार्टमेंट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्कूल एंड डिपार्टमेंट है मुख्तलिफ चिन्फा यूनिवर्सिटी में, लाइक एकेडमी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, स्कूल ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. सो आप अपनी चॉइस के मुताबिक स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि मुझे पीएचडी एडमिशन मिल जाए. ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट. So my school of interest is School of Information Science and Technology. I will search here. So this is also in Chinese, so you have to translate it to English as well. So मैंने इसको English में translate कर दिए. So now find the faculty here. So these are the research program, degree programs, and here is the faculties. So National Academy Professor, Chair Professor program. So we will click on professors. अच्छा, तो इसमें डिफरेंट प्रोफेसर आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट के, जिस तरह हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेशन हो गए. तो अब हम सर्च करेंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हम सर्च कर सकते हैं प्रोफेसर को. सो नाउ search within the Department of Electronic Engineering. So here is the complete list of professor, assistant professor, associate professor that are associated with this particular department. और इसके रिसर्च इंटरेस्ट भी लिखे हुए हैं. मज़े की बात है कि आप देख सकते हैं इनका रिसर्च इंटरेस्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसकी डिजिग्नेशन भी लिखे हुए है. जिस तरह ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, तो ये एकेडमिशन है बेसिकली, ये प्रोफेसर्स हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर है. तो अब आपकी मर्ज़ी जिस प्रोफेसर को चूज़ करना चाहता हो, लेकिन कीप इन माइंड
कि आपने वही प्रोफेसर सेलेक्ट करना है जो आपके रिसर्च से रिलेटेड हो। लेट सपोज मेरा एरिया है मशीन लर्निंग, तो मैं ऐसे प्रोफेसर को सर्च करूँगा जिसने जो मशीन लर्निंग पे काम करता हो। ओके, आई विल क्लिक एनी ऑफ द प्रोफेसर इन दिस and let's go and check her research interest. So here is the research status. Research achievement include a framework of fuzzy information fusion of automatic segmentation of brain tumor tissue or MR images. So her research interest is mostly related to medical image processing. So if someone is interested in medical image processing, so he or she can apply to this professor. Not only in medical image processing, but she's also in signal processing and audio signal analysis as well. So if someone is interested in medical image processing, so he or she can apply to this professor. So the next step is how you will gonna apply to this professor. This is the email address. ये उसका email address है, इसको आप कॉपी कर लेंगे और अपने मेल बॉक्स पे चले जाएंगे. Let me open my, okay, okay, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस को पेस्ट कर लेंगे और सब्जेक्ट में आप लोग लिख लेंगे. अच्छा, ईमेल शुरू करने से पहले कुछ बातें हम लोगों ने याद रखनी होगी. आप लोगों को पता है कि बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने अपना ईमेल जितना प्रिसाइज और अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं तो लिख लें. और आप लोग का सब्जेक्ट भी इस तरह होना चाहिए कि वो प्रोफेसर जब आपकी ईमेल को देख लें तो उसे अंदाज़ा हो जाए सिर्फ सब्जेक्ट से कि व्हाट्स हिज डिज़ायर. ये सो नाउ लेट्स स्टार्ट and we'll find her name. What's the name of that professor is. तो कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा ईमेल के हवाले से. पहले आप लोगों ने ये करना होगा कि अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन देना होगा. उसके बाद अपना रिसर्च इंटरेस्ट ज़ाहिर करना होगा और फिर प्रोफेसर को ये कहना होगा कि मैं चूँकि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ एकेडमिक सेक्शन 2020 के लिए, तो काइंडली आप मुझे एक्सेप्ट कर ले, मुझे जगह दे दे अपने लैब में. जो भी यूनिवर्सिटी हो आप लोग की, जो भी यूनिवर्सिटी हो आप यहाँ पे लिख लें. अच्छा, रैंक मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. जौन सा भी रैंक हो उसका XYZ, जो भी रैंक हो आप रैंक लिख लें. अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग और QS रैंकिंग. ये तो कोई भी आप हवाला दे सकते हैं, या टाइम्स हायर एजुकेशन का या QS रैंकिंग का. अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने अपना रिसर्च इंटरेस्ट लिखना होगा. माई रिसर्च, जो भी आप लोग का रिसर्च इंटरेस्ट हो आप यहाँ पे लिख लें. ओके, इसके बाद आप लोगों ने प्रोफेसर को बताना होगा कि मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया है एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड टू जॉइन योर लैब.
अच्छा, सो ये बात बहुत ज़रूरी कि आपने प्रोफेसर को बताना होगा कि मैंने आपका रिसर्च ग्रुप चेक किया है एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड टू जॉइन योर लैब एज अ पीएचडी स्टूडेंट। और उसके बाद आपने ये भी बताना होगा कि मैं अपने एक्सपेंसेस चाइना में किस तरह फंड करूँगा। सो से दे ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रोफेसर को बताना होगा कि मेरी जो पीएचडी एक्सपेंसेस है वो मैं किस तरह फ़ंड करूँगा। लेट्स सपोज चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से फ़ंड करूँगा, या मैं उसको प्रोविंशनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से फ़ंड करूँगा, या किसी दूसरे ज़रिए से भी फ़ंड करूँगा। इसलिए ज़रूरी है कि प्रोफेसर को आपने कहना होगा कि मुझे सिर्फ रिकमेंडेशन लेटर चाहिए एंड आई विल कवर माई एक्सपेंसेस टू चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और वट एवर स्कॉलरशिप इट इज़। So the next step is ask for a recommendation letter. Okay, that's it. पहले हमने अपना इंट्रोडक्शन करा दिए कि कहाँ से मैंने मास्टर किया है, और फिर अपना रिसर्च इंटरेस्ट बता दिए। मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग जिस तरह हो गया, या इमेज रजिस्ट्रेशन डीप लर्निंग हो गया, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग बिकॉज यू कैन अप्लाई डिफरेंट डीप लर्निंग मेथड्स ऑन मेडिकल साइड एज वेल। उसके बाद आपने प्रोफेसर को बता दिए कि मैंने आपका प्रोफाइल भी चेक किया हुआ है एंड आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन योर लैब एज अ पीएचडी स्टूडेंट और मास्टर स्टूडेंट। और उसके बाद आपने ये भी कह दिए कि आई विल कवर माई एक्सपेंसेस थ्रू चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और वट एवर स्कॉलरशिप यू आर अप्लाइंग फॉर। So that's it. I think this is the short and comprehensive email. बिकॉज लंबे चौड़े ईमेल लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका लंबा चौड़ा ईमेल पढ़ ले। और लास्ट में आपने ये भी कहना होगा कि इस ईमेल में मैंने अपनी सीवी भी अटैच की हुई है। और आखिर में अपना नेम भी आप लोग लिख लें। सो दैट्स इट। और सिर्फ सीवी अटैच कर ले और डॉक्यूमेंट अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रोफेसर को आपकी सीवी पसंद आएगी सो डेफिनेटली ही विल रिस्पॉन्ड बैक। और दूसरी बात ये भी है कि एक दफ़ा अगर आप ईमेल कर ले तो प्रोफेसर को दोबारा ईमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं। इफ़ ही लाइक्स यूर सीवी डेफिनेटली ही विल रिस्पॉन्ड बैक। और अगर उसे सीवी पसंद नहीं आई तो वो आपको रिस्पॉन्स तक ही नहीं करेगा। ओके, सो दैट्स इट। I hope you find it helpful. If you have any queries, you can put that in comments and I will definitely respond back. Okay, so that's it. Please don't forget to subscribe our channel.